Good afternoon and Assalamualaikum. On behalf of Center for Law and Security, I warmly welcome my esteemed guests at the webinar series, which is a regular feature of the center. I am Junior Research Associate Rabia Anwar and will be hosting you throughout the session today. So, as we have seen that the interim Afghan government has entered into third year of its rule on 15th of August 2023, with still unrecognized from international community, which is a barrier to its international cooperation with the outside world. So, to analyze the hurdles and barriers, we at class felt an imminent need to hold a webinar on 2 years of Taliban, its recognition and cooperation barriers. So, to have a fruitful discussion on the subject matter, we have two distinguished guests, Brigadier Mahmood Shah, the defense analyst, and Dr. Salma Malik, professor of Defense and Strategic Studies at Qaid University. And we are also joined by our executive director, Mr. Rahman Asghar. I welcome all of you on board. Thank you very much. So, keeping in consideration the post-US withdrawal, Afghanistan, I would like to begin the session from Brigadier Saab, sir. सर हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि अभी तक जो इंटरिम अफगान गवर्नमेंट है वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में नाकाम रह गया। तो सर आपके ख्याल में वो क्या हर्डल्स फेस करना पड़ रहा है अफगान गवर्नमेंट को कि जिसकी वजह से वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना सकती, जो कि उसकी रिकग्निशन के लिए एक कंडीशनल एस्पेक्ट है, बहुत जरूरी है उसके लिए। Thank you very much, Rabia. In fact, expecting from the Afghan government to have a modern state structure probably too much. Unfortunately, they have not been working on this aspect to make a model government, Islamic government. They talk about Islamic government, so they need a model. And they should have worked out one by now. For example, if you look at Iran, and they talk of an Islamic government, and they have made a model, and they are improving on that model day by day, and they are running the government efficiently. In this case, unfortunately, they have never worked on a model of an Islamic government and probably a Sunni government, which could have not only been better for Afghanistan, but also a model for rest of the world, Islamic world. This is how an Islamic government can be run and can function. They just have a shura, and in shura there are various groups. They are representing their groups, and they talk about verbally on something and then take it on. So therefore, there have not been any progress, and probably with this situation, we cannot expect any government. For example, if the Western government is talking about the women law there, of course, it's important. It's an important, a major care of the population. They say they will not go to school. They will say that they will not go after 10 years of age. They will not go to school. This is not possible. They should have worked out a system in which the girls, the female lot, can go to the school and workplaces, and they can have all those restrictions, for example, parda, chadar, something, or a burqa, or whatever they want to call, they can continue wearing that. And unfortunately, this is only in cities that you find people wearing burqas. In Afghanistan, most of the house chores are done by the women. They are the ones who take out these animals for grazing. They are the ones who bring wood from the jungle to the house. They are the ones who bring water. They don't observe any parda of that sort, which they are talking about. It is only in city. So I think they should come down with a system, with a model government
Islamic government, and for that matter, Sunni government, which can be applicable to us also later on at some stage of life, or other Muslim countries. Unfortunately, they have not worked on that, and therefore they are being criticized, and their sort of government running is on day-to-day verbal instructions coming अच्छा from Cuba, and that is why, unfortunately, Afghanistan has not progressed and is not likely to progress in this manner in which जी they sacrifice their ये बड़ा rich इंटरेस्टिंग army. है बगेटी साहब. आई थिंक वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन. डॉक्टर साहब, अच्छा मैं, क्योंकि ये 2 साल अभी इनको हुए हैं आए हुए, सो हाउ डू यू सी, एक स्टेबिलिटी का फैक्टर तो है वो अफगानिस्तान के अंदर, एक कंट्रोल का फैक्टर तो है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी शायद अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, नॉट इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड जिस तरह बाकी जगहों पर होती है, बट ये ट्रांसलेट एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी के अंदर जो है, वो क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अज़र साहब एंड टू द टीम सीलास. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, और डिस्कशन ही नहीं होती बल्कि हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है कि लुक एट देम, वो कितने स्टेबल हैं, वहाँ क्राइम रेट कम है, डॉलर जो है वो बहुत एक जगह पे स्टेबल होके रुका हुआ है. बट दीज आर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चा सबसे शरारती होता है क्लास का, जब आप उसी को मॉनिटर बना दें तो फिर शरारत कौन करेगा? ठीक, तो जो दोहा अकॉर्ड थे, उन दोहा अकॉर्ड्स का जो बेसिक फंडामेंटल था, टेक्निकली अमेरिकन्स ने अफगान गवर्नमेंट को तो एक कॉस्मेटिक जरिए से, बिकॉज वो उन्हीं की बिठाई की गवर्नमेंट थी, तो उसकी तो उस वक्त आखिर के कुछ महीनों में उन गरीबों की तो कोई लेजिटिमेसी ही नहीं रही थी. सो बेसिकली तो उन्होंने एक राहदारी परमिट साइन किया था दोहा अकॉर्ड की शक्ल में, सो टू हैव अ सेफ एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड नॉट ओनली अ सेफ एग्जिट बल्कि सेफ एंड सिक्योर एग्जिट, प्लस द फैक्ट दैट एन ऑनरेबल एग्जिट. सो दे डिडंट रियली वांट के जाते जाते पीछे से कोई बॉम्ब पड़े और C-130 गैलेक्सीज जो हैं दे आर डाउन्ड और एनीथिंग, and no one says anything, so that they exit with a decent face. If you actually ask the Americans, they do blame the Pakistanis and everyone for the debacle in Afghanistan, but fact remains कि 20 सालों में अमेरिका, हालांकि उन 20 सालों से पहले भी एक हिस्ट्री है अमेरिका की अफगानिस्तान में, ढकी छुपी है, पसे पर्दा है, जो भी है, बट देर इज अफगानिस्तान एंड US कनेक्शन. बट वो जो सोच के आए थे अफगानिस्तान में, वो उस तरह से हासिल नहीं कर सके. अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर वो कॉस्मेटिकली कहते थे कि हमें डेमोक्रेसी लानी है, तो डेमोक्रेसी भी बहुत शॉर्ट लिव रही. पाकिस्तान ये कहता था कि जी तालिबान जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं, उनको आप स्टेक होल्डर बनाएं. 20 सालों के बाद अमेरिका ने वही किया जिसको वो डे वन से शन कर रहा था. सो वो यहाँ से चले गए. उसके बाद क्या हुआ कि जो मेन ट्रबल मेकर्स थे उन 20 सालों में, दैट वाज द तालिबान ऑफ अफगानिस्तान. तो अब वो वापस आ गए, बल्कि ना सिर्फ वापस आए, अमेरिका ने जाते हुए उनको कहा कि आप लोग आके काबुल को कंट्रोल करने, वरना क्योस हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली वो दोहा अकॉर्ड की गारंटीज का हिस्सा था. जो दोहा अकॉर्ड्स हमारे सामने आए, उनसे कहीं ज्यादा उसमें सीक्रेट डिलिबरेशंस हुई, बहुत अंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी इन द इयर्स और डेकेड्स टू कम. सो उसके नतीजे में द तालिबान केम. अमेरिकन बेस्ड जो गवर्नमेंट थी गनी साहब की, वो इतनी शॉर्ट लिव थी, इतनी टेम्पोरल थी कि अमेरिकन के जाने से पहले गनी गवर्नमेंट जो थी वो एग्जिट कर गई. ठीक है, एंड एक दो हफ्ते उन्होंने एक सेम्बलेंस रखी, कुछ इलाकों में रेजिस्टेंस हुई, कुछ लोगों ने हैरत दिखाई, वो भी नहीं हो सका. इसमें हैरत की बात को भी छोड़ें, बात यह है कि तालिबान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट फैक्टर भी है, जो कि उनकी 20 साल पहले जो दहशत उन्होंने एक लोगों के दिलों में बिठाई थी वो हुआ. साथ ये कि बहुत सारे अफगान ने एग्जिट करने की कोशिश की और एक मैसिव एग्जिडस भी हुई. लोग इतने डेस्परेट हुए कि जहाज़ों के पहियों के साथ लटक गए और बहुत ट्रेजेडीज देखने को आई. But after that, the Taliban are in control. Predominantly 33 लोगों की कैबिनेट है, पश्तून कैबिनेट है, कोई खातून नहीं है उसमें. The only challenger power at the moment is the ISPK.
और बहुत सारे लोग ये भी शक का इजहार करते हैं कि इनको चेकमेट करने के लिए और इनको काबू में रखने के लिए ये अमेरिका की B, C, D टीम है, टीम अच्छा। Z है, ये सब कुछ करते फिर रहे हैं। वट एवर द सिचुएशन, सो टेक्निकली तालिबान के टक्कर की अफगान इंडिजिनस तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इनको चैलेंज करे और इनको विथस्टैंड कर सके। सो इसकी वजह से स्टेबिलिटी है, फिजिकल स्टेबिलिटी है, राइट, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के पैरामीटर्स में कहते हैं। वो तमाम ममालिक जिन्होंने अब तक अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिकली एक्नॉलेज नहीं किया, वो नहीं कर रहे। अमेरिका ने उनको सैंक्शंस भी लगाई हुई हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी सैंक्शंस है, तो दे कांट डू विदाउट इट। बट बहुत सारी चीजें जो सैंक्शंस में उन्होंने रोकी हैं, उनके फाइनेंसेस भी रोके हुए हैं, वो एड के जरिए उनको कहीं ना कहीं से सप्लीमेंट कर रहे हैं, UN के अंडर कवर कर रहे हैं। रशिया ने उनको एक तरह की रिकग्निशन, नॉन रिकग्नाइज रिकग्निशन दे दी है। चाइना ने भी उनको एक नॉन रिकग्नाइज रिकग्निशन दी है। Even during the American rule in Afghanistan और American backed गनी रूल इन अफगानिस्तान, अगर किसी भी माइन के ऊपर कहीं भी एक्सट्रैक्शन, कोई भी इनको रिसोर्स परमिट चाहिए होता था, तो मिनिस्ट्रीज का जो लेटर था वो बस एक फाइल के अंदर रखने के लिए फॉर्मेलिटी होती थी। बेसिक परमिट तो चिट के ऊपर अफगान तालिब जो वहां का लीडर होता था लोकल, वो ही देता था, ठीक है। पैसेज में सो देते थे और ये was the तमाम चीजें extent of the control the Taliban exerted. So physical security में Taliban for the moment, except for the ISPK or if it's affiliates, they don't have a challenge, and that is a sufficient challenge for बट them. आपको लगता है Indigenous कि एक अल्फा फोर्स है इन दैट sort of parameter, absolutely, वो अभी सिर्फ अफगान तालिबान ही हैं और उनको कोई चैलेंज करने वाला absolutely, नहीं, absolutely. right? And then लेकिन they're really not bothered. I'm very sorry. They're really not bothered कि food crisis, domestic instability डालेगा कि नहीं डालेगा, because they deal with many things with an iron fist. और just to maintain Afghanistan from falling apart, UN की शक्ल में इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं अफगानिस्तान में एड लाती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, डॉलर भी एक हद तक स्टेबल रहेगा, बिकॉज दे रियली डोंट वांट कि अभी यूक्रेन में सब इतने मसरूफ हैं, चाइना को काउंटर करने में मसरूफ हैं, कि अफगानिस्तान इनके क्लचेस से निकले, चाइना के पास चला जाए, या रशिया के पास चला जाए, या फिर फॉल अपार्ट होके साउथ एशिया में एक नया वॉर फ्रंट खुले, तो अमरीकी जो है अपनी अटेंशन डाइवर्ट करें। तो बस ये इतना ही रखेंगे कि ये पैमाना छलके नहीं और स्टेबिलिटी रहे, और उसके लिए द तालिबान आर डूइंग अ फेयरली डिसेंट जॉब। जी, लेकिन दिस ब्रिंग्स मी कि 2 सालों के अंदर ये अफगान तालिबान किस तरह से गवर्नमेंट चला रहे हैं। महमूद शाह साहब, ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो तालिबान के जो गवर्नमेंट है उसकी रिलेशनशिप विद देयर नेबर्स, उनको मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पर ये रियलाइजेशन तो है कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना बड़ी पावर है, जो है वो, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, तो उनको जरूरत है। और पाकिस्तान बीइंग द बिगेस्ट नेबर, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो एक एडजेसेंट है बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ उन्हें एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी। लेकिन हमने देखा पिछले 2 सालों में कोई बहुत ज्यादा आइडियल रिलेशनशिप नहीं है जो अफगान गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के दौरान कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ चीजें जो है वो उधर जो है वो इधर उधर जो है वो चल रही हैं। उसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि ये रियलाइजेशन तो पाकिस्तान में भी है कि भाई ये आपकी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, या गिवन सिनेरियो के अंदर है, और तालिबान को भी ये रियलाइजेशन हो गई कि भाई ये हमारी बेस्ट ऑप्शन है एज फार एज कांटेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड इज कंसर्न। तो सर, इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं और इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? दरअसल पहले जैसे मुल्ला उमर था, तो उसकी रेट या उसकी जो वर्ड ऑफ माउथ था, दैट वाज ए कमांड, एंड अच्छा। नोबडी डेयर कि उसको उनको डिसोबे करे या कुछ और करे। अभी जो उनके बाद लीडरशिप आई है, जो अभी हैबतुल्लाह दुरानी है, तो प्रोबेबली वहाँ पर जो सूबा के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो अपने आप को मनवाते हैं, और प्रोबेबली उनकी वो जो सेंट्रलिटी ऑफ कमांड थी वो मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे हकानी ग्रुप है, कंदारी ग्रुप है, दूसरे शुमाली इलाकों के ग्रुप है,
वो अपने अपने ताकत के मुताबिक जो है वो करते हैं। ये जो तालिबान है या ये जो रिलीजियस फैक्शन है, इनका पूरे अफगानिस्तान में एक किस्म का रिस्क मौजूद है, क्योंकि और कोई सिस्टम नहीं है। हमारे मुल्क में जैसे सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, डीसी है, थाना है, इस तरह पुलिस है, वो सेंट्रली। अफगानिस्तान में सिर्फ मसाजिद है हर एक गांव में, और उसका मुल्ला है, और वहाँ पर जो एक खान होता है और एक इखवान। इखवान इज द मौलवी। हाँ So have every nook and corner and a system which is there. But unfortunately, in the leadership, जिधर हैबतुल्लाह दुरानी है, वो he is not the same as उमर, जो पहले अपने वक्त में था। तो जी मैं समझता हूँ थोड़ा सा इनको वो देखना चाहिए। अफगानिस्तान में काफी सारे लोकल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी है। मिसाल के तौर हाँ पे वहाँ के स्मगलर्स है, वो स्मगलिंग के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। तो पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे ज्यादा उनके लिए आसान है। दैट इज वाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ये फ्रैक्शन आपको नजर आता है। तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान तो एक बहाना है बीच में या उनके पीछे जो सही है ये स्मगलर्स है, ड्रग पेडलर्स है, बहुत बड़े बड़े, और वो करते हैं। तो मेरे ख्याल में तालिबान की लीडरशिप को, जैसे मैंने इन्हीं की भी बात की, सोचना चाहिए कि उनके लिए ये नेटवर्क पूरे मुल्क में मौजूद है। दे नीड टू मेक ए गवर्नेंस, और वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये सोचे कि तमाम पॉपुलेशन के हाँ सिलेक्शन के बाद दुनिया उनको कह रही है, उसमें कोई वजह है, लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक औरतें जाति जाति अपने अपने मुताबिक पर्दा किया होता है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं, आप ज्यादा सख्त कर ले। अफगान में हाँ अफगानी यहाँ भी रहते हैं, वो भी एजुकेशन हासिल करते हैं, और वो समझते हैं कि ये सही तरीका है। तो सही मेरे ख्याल में उन लीडरशिप है हैबतुल्लाह दुरानी की, उनका जो शुरा है, उनको एक अच्छा मॉडल के ऊपर करना चाहिए, और वो मॉडल पूरे हाँ अफगानिस्तान जो है आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो स्मगलर्स है, ड्रग पेडलर्स है, इनको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि ये चीज नहीं है। अफगानिस्तान की अपनी जो पैदावार है, ड्राई फ्रूट की है, कई और मिनरल्स है जो अफगानिस्तान हाँ के, ऑर्गेनाइज करने की बात है। एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट वहाँ पर बन सकता है, एक सक्सेसफुल मुल्क पूरे रीजन में बन सकता है। तो उन ये जो जो मौजूदा गैर जिम्मेवारी है कि वहां पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पग पहने हुए हैं, और बस पूरे दिन हाँ बातें करते हैं, तो इसके ऊपर वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर गवर्नमेंट नहीं नहीं चल सकती। ये वही और बात है जो डॉक्टर सलमा साहिबा कर रही थी कि जब उनको पता है कि कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं है और वो अभी हैं और अभी वो चलाते रहेंगे, तो वो फिर वो इतनी ज्यादा परवाह नहीं करते कि उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है इकोनॉमी के अंदर और कुछ चीजों को ठीक करना है और कोई इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। जी या, जी बिल्कुल, राघव उनको डॉक्टर जो साहबा है इसी के ऊपर करना चाहिए। सॉरी। जी, डॉक्टर साहबा, तो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में क्या देखती हैं कि इनके जो ट्रेड और कॉपरेशन बैरियर्स हैं वो कैसे खत्म हो सकते हैं, और इसमें टीटीपी फैक्टर है? जी मैं थैंक यू मैडम। जी जी मेरे से महमूद शाह साहब बात कर लें तो फिर मैं करती हूँ। जी नहीं मैं अफगानिस्तान जो है काफी सारी चीजों के लिए पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, ठीक और पाकिस्तान को वो जो डिपेंडेंस है उसको इस्तेमाल करना चाहिए थोड़ा थोड़ा उनको कंट्रोल करने के लिए।
मिसाल के तौर पे अगर ज्यादा प्रॉब्लम हमें नॉर्थ वजीरिस्तान में हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि हाँ गुलाम एक्सपोर्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ ठीक। की जो बट ये आइडियोलॉजिकल जो इशू है और ये कि वो एक इंस्पिरेशन भी जो है वो शायद इससे जो है वो लेते हैं। और डॉक्टर साहब इसको भी जरा थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि ये आइडियोलॉजिकल जो एक ग्राउंड है, जो कॉमन ग्राउंड है, ये कहीं हमारे लिए भी मसला है विद द एक्सेप्टेबिलिटी कि हमने टीटीए के रेजीम को जो है वो अफगानिस्तान के अंदर किस हद तक जो है वो एक्सेप्ट करना है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस एज वेल कि हमने इसको डील कैसे करना। जी देखिए, एक चीज ये होती है कि स्पेशली विद सच इलेजिटिमेट एक्टर्स, कि जब इनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे टीटीपी को टीटीए मिल गया है, तो वो उस प्लेटफॉर्म को मैक्स अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी लेजिटिमेसी को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन फॉर द लॉन्गेस्ट। बट यहाँ तक सिर्फ बात खत्म नहीं होती। Genuinely, the TTP aligned itself with the TTA because they thought कि अफगानिस्तान में वो शरिया लाएंगे, जी और जो उनके बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स थे, इनके सरबराहान का जो है पिवट पॉइंट एक जितना था, देवर लॉट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एज वेल एज एक्सप्लोरेशन। तो उसकी वजह से, प्लस द फैक्ट कि वो जो आपका एक फिजिकल डेटरेंस का नोशन है कि उसको इस्तेमाल करके, दहशत को इस्तेमाल करके, ताकत के जरिए ये अपना काम मनवाते हैं, तो वो दोनों तरफ बड़ा कारआमद रहा है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूरिंग दिस लॉन्ग 20 years did whatever they could in their capacity to curb this. हमारी तरफ जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि सिविल मिलिट्री लेवल पे हम लोग हमारे नजरिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, ये तो बात अंडरस्टूड थी कि ये मसला है और बहुत बड़ा मसला है और बड़ा लेजिटिमेट मसला है, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान इससे अफेक्ट हो रही है। बट सिविल और मिलिट्री के जो इदारे थे, इनकी अप्रोच टू हैंडल दिस प्रॉब्लम फॉर द लॉन्गेस्ट बड़ी डिफरेंट रही थी। जब तक 2014 का एपीएस का हादसा नहीं हुआ था और उसके बाद एक कॉमन पॉइंट पे मर्जर हुआ था, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान हुआ, जिसको हम लोगों ने उस तरीके से शुरू में तो बहुत सिंसारिटी से अप्रोच किया, पर उसके बाद भी लॉस्ट इंटरेस्ट, ये लोग भाग गए यहाँ से, अफगानिस्तान चले गए, फिर बहुत सारे मसले मसाइल आ गए, एक लीन फेज आ गया। बट अब भी ये है कि अगेन हमें डाइवर्जेंट वॉइसेस दिखाई देती हैं। कंसर्न फिर भी कॉमन है कि टीटीपी रिटर्न हुआ है, बट सबसे पहले टू विदाउट एड्रेसिंग कि अब इसका करना क्या, हम कहते हैं क्यों रिटर्न हुए, इसका क्या होना है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कहता है अभी अब आपके आपके बंदे थे, हमारे पास आए थे, वापस चले गए, हम व्हाई शुड वी टेक interest in them, why should we call shots on your behalf, हम autonomous हैं, आप autonomous हैं, and so on and so forth. So वो जो multiplicity of factors है और उनके जो interest factors हैं, why should they antagonize their foot soldiers? TTP has played foot soldiers to TTA. So वो अपने फुट सोल्जर्स को कभी नहीं करेंगे, वो उनके प्रॉक्सी तो यहाँ नहीं है, बट वो उनके फुट सोल्जर्स हैं। और अगर जब भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उसको जितने अच्छे तरीके से टीटीपी इस्तेमाल करती है अफगानिस्तान के खिलाफ, उतना तो पक्का भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं इस्तेमाल तो एक किया। बहुत बड़ा इशू ये आइडियोलॉजी का रहा है कि आइडियोलॉजी पे आइडियोलॉजी का भी कॉम्प्रोमाइज, इवन जो अमेरिका के साथ उन्होंने 20 साल के अंदर उन्होंने आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स अपनी उस तरह से वो नहीं छोड़ी। सो जी, क्योंकि डॉक्टर देखिए तब भी टाइम जरा कम है, वी हैव अमेरिका ने अबाउट कहा है कि 2 minutes and 40 जी seconds, तो कंक्लूडिंग कमेंट आप भी दे दें, साथ फिर मैं शाह साहब से भी लेता हूं कि फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इस इंटरिम गवर्नमेंट का, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट या टीटीए की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान। देखिए, बहुत लंबे अरसे के लिए अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस, स्टेबिलिटी, फूड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, एक स्टेलमेटेड कैफियत है। मैं इसको स्टेबिलिटी नहीं कहूंगी, मैं स्टेलमेटेड कैफियत कहूंगी। स्टेलमेट एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, वो बहुत लंबे अरसे नहीं चल सकती, तो जी लंबे अरसे के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और साथ उसके बीइंग अ वुमन, आई हैव टू फ्लैश द पॉइंट कि खवातीन की इंक्लूजन कहीं नहीं है। खवातीन को, जो कि अफगानिस्तान की 38 मिलियन पॉपुलेशन का आधा परसेंटेज है, इन्होंने घर पे बिठाया हुआ है। अफगानिस्तान में ड्रग एडिक्ट सब कुछ है, उसके बल्कि वो नतीजे में ये ज्यादा है कि सख्त होते जा रहे हैं। जी, शुरू बल्कि में जब एग्जैक्ट आए थे तो उस वक्त उनका डिस्पोंडेंसी था कि शायद डिस्पोंडेंसी न्यूरोसिस हाँ को, ऐसी चीजों को एग्जैक्टली ला रही। तो 10% की पॉपुलेशन पे अफगानिस्तान चल रहा है, कब तक चलेगा? ठीक है, राइट। सैंक्शन, सारी चीजें। महमूद जहाँ साहब और सर
फिर से इस कित्ते को एड्रेस करना पड़ेगा और आलम आलम को यहाँ आके दे हैव टू पुट देयर हेड्स टुगेदर और ठीक। प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। शाह साहब 30 सेकेंड्स हैं जी, हमें कोई वर्ड्स ऑफ विजडम दें कि आगे मुश्किल है रास्ता टीटीए के लिए, ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ चेंज भी हो सकती है? मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो आना इसके काफी वक्त जरूरत है और हमें अच्छा। इमीडिएटली सोचना नहीं चाहिए कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक। हम को ज्यादा जो जरूरत है कि हम अपने बॉर्डर को कैसे सिक्योर करें और जो ठीक। अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है तो उसको हम कम से कम उसको हम मिनिमाइज जो है वो कैसे करें? राइट सर। सर राबिया। Thank you very much, both of you, for having such a productive discussion. I thank both of you on behalf of Center for Law and Security, and thank you very much, sir and ma'am. थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, महमूद शाह साहब। Thank you. थैंक यू राबिया साहिबा, थैंक यू रहमान साहब। प्लेजर And टू Thank you. इंटरेक्ट विद महमूद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum.